Bismillahirrahmanirrahim. We were discussing performance measure of diagnostic test, and in performance measure of diagnostic test we have already covered several parts, and the main issues or main things which we were discussing the performance measure was sensitivity, specificity, and predictive value. In these slides we have already discussed the sensitivity. What is sensitivity, what is specificity in particular, predictive value, and we have divided predictive value in positive predictive value and negative predictive value. Then we have seen the summary of the diagnostic test performance measure. In this 2 by 2 table we have put down disease present and the test result positive, disease absent but the result positive, disease present but the result is negative, and disease absent and the result is negative, and how we can calculate it. We have discussed here the different definitions about W, X, Z, and Y which are available in this table. Prevalence of disease by this diagnostic test, how we can calculate, we have discussed. Then the accuracy, how we can check or accuracy can be determined, that is the formula which is available here. False positive rate, how we can check, that we have discussed. False negative rate, how we can check or how we can calculate, that is available here, and we can calculate based upon some mathematical formulas. Then the sensitivity or the true positivity rate, how we can calculate, their formula is also available from this table. And specificity, true negative rate or the specificity, that how we can calculate it. Now today we are continuing with the positive predictive value. Now what is positive predictive value? Proportion of the positive test that correctly identify the disease person, means के proportion or the percentage of the positive test that correctly identify the disease present, or proportion of individuals with a positive test who have the disease, means कि ये वो patient हैं जिनको डिजीज मौजूद है और टेस्ट इनका पॉजिटिव आया है, तो वो कितने परसेंट रिजल्ट दे रही है टोटल पॉपुलेशन में. एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट इट? पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू इज इक्वल टू W अपॉन W प्लस एक्स. W अपॉन W प्लस एक्स मीन्स W वैल्यू ली हमने और डिवाइडेड बाय W प्लस एक्स. अगर हम उस टेबल पर दोबारा जाएं और हम उसको दोबारा देखें तो हमें ये बात क्लियर हो जाएगी. W अपॉन W plus X means this value, all testing positive, W upon W plus X means this value divided by this value. By this way we can calculate true positive rate. So this is the way we can determine the positive predictive value. If we multiply then it will be converted into the percentage, otherwise it will be fraction or the probability. Similarly, the negative predictive value. What is negative predictive value? What is its definition? Proportion of the negative tests, means how many percent are negative tests that correctly identify non-disease persons. और बिल्कुल करेक्टली इनको आइडेंटिफाई किया गया है कि इनमें डिजीज मौजूद नहीं है और रिजल्ट भी इनके नेगेटिव है. इसी वजह से द अनदर डेफिनेशन इज proportion of individual with a negative test. ठीक है, proportion of individual with a negative test who do not have the disease, जिनको disease नहीं है. Negative predictive value, how we can calculate? Negative predictive value is equal to Z upon Y plus Z, Z upon Y plus Z. तो इसको भी हम एक दफ़ा फिर टेबल में देख लेते हैं. Z upon Y plus Z. How we can determine? Z upon Y plus Z means all negative results, ये है Y plus Z, और Z ये कि जो जिनको वाकई डिजीज़ नहीं है और रिजल्ट भी नेगेटिव है, Z अपॉन Y प्लस Z. तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू. अच्छा, नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू ये जो हमें कैलकुलेट होकर मिलेगी इस फॉर्म में, तो ये होगी फ्रैक्शन की फॉर्म में, मींस प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में. बट इफ़ वी मल्टीप्लाई इट देन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द प्रपोर्शन और द इन द फॉर्म ऑफ द परसेंटेज. तो इस तरह से ये परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. नाउ
यूटिलिटी परफॉर्मेंस मेजर फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट्स के जो उसकी परफॉर्मेंस मेजर की बेस पर उसकी यूटिलिटी क्या है, किस हद तक है यूटिलिटी। तो हम किसी भी डायग्नोस्टिक टेस्ट को ये चेक कर सकते हैं कि उसकी यूटिलिटी परफॉर्मेंस क्या है। आइडियली डायग्नोस्टिक टेस्ट वुड बी 100% सेंसिटिव, मीन्स 100% ट्रू पॉजिटिव रेट, एंड 100% स्पेसिफिक मीन्स 0% फॉल्स पॉजिटिव रेट। ये तो आइडियल सिचुएशन है कि हमारे पास कोई ऐसा टेस्ट हो किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए या किसी भी रिएजेंट को डिटरमिन करने के लिए कि जो 100% सेंसिटिव हो। 100% सेंसिटिव का मतलब है कि 100% ट्रू पॉजिटिव रिजल्ट आए और 0% फॉल्स पॉजिटिव रेट हो, और यानी 100% स्पेसिफिक हो। 100% सेंसिटिव एंड 100% स्पेसिफिक। बट ये आइडियल सिचुएशन है, ऐसा कोई टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा है, दिस सिनेरियो इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। देयर इज ए ट्रेड ऑफ बिटवीन सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ता है बिटवीन सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी के जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे पास मौजूद हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, किसी पर्टिकुलर रिएजेंट को डिटरमिन करने के लिए, तो हम उसमें चेक करते हैं कि कौन से टेस्ट से सबसे अच्छी सेंसिटिविटी आती है और कौन से टेस्ट से सबसे अच्छी स्पेसिफिसिटी आती है। तो वी नीड टू चेक इट, वी नीड टू बैलेंस इट। In practice, tests used to diagnose commonly have 80% sensitivity and 90% specificity. ज़्यादातर टेस्ट जो डायग्नोसिस के लिए यूज़ होते हैं लैब में, उनमें सेंसिटिविटी अगर होती है मिनिमम तो 80% तो लाजमी होती है, और स्पेसिफिसिटी मिनिमम 90% होती है। इसका मतलब ये हुआ कि मोर देन 80% सेंसिटिविटी एंड मोर देन 90% स्पेसिफिसिटी जिस भी डायग्नोस्टिक टेस्ट की होगी वो उतना ही ज़्यादा वैलिड और रिलायबल होता चला जाएगा। नाउ रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व और ROC, रिसीवर ऑपरेटिंग कर्व, आर यूज्ड to illustrate the trade-off between sensitivity and specificity. ये जो कर्व है इसको यूज़ किया जाता है, ROC कर्व को। ये बताता है कि जो हमारी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी एज पर स्टैंडर्ड है और एक्सेप्टेबल है या नहीं है। रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व ये है क्या? सेंसिटिविटी इज प्लॉटेड ऑन द वर्टिकल एक्सिस, मीन्स ट्रू पॉजिटिव रेट। इसमें क्या होता है कि सेंसिटिविटी यानी ट्रू पॉजिटिव रेट्स इज प्लॉटेड ऑन द वर्टिकल एक्सिस, एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट जिसको 1 माइनस स्पेसिफिसिटी भी कह सकते हैं, इज प्लॉटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मीन्स के ग्राफ में जो है इसको प्लॉट करते हैं, सेंसिटिविटी को प्लॉट करते हैं वर्टिकल एक्सिस पे और फॉल्स पॉजिटिव रेट को हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे। 0 कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट 0% सेंसिटिविटी, यानी ग्राफ में जैसे होता है वाई एक्सिस का भी 0 और एक्स एक्सिस का भी 0, तो ये 0 कोऑर्डिनेट वो है। तो 0 कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट 0% सेंसिटिविटी एंड 0% फॉल्स पॉजिटिव रेट, मीन्स ऑल टेस्ट रिजल्ट्स आर नेगेटिव। यानी अगर 0 पर है तो करवा रहा है तो यानी जितने टेस्ट जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, यानी अगर उनमें डिजीज नहीं होगी। And 1 coordinate represents 100% sensitivity and 100% false positive rate, means all test results are positive. और 1 जो मैक्सिमम हो गए यानी प्रोबेबली 1 मीन्स 100% रिप्रेजेंट करेगा 100% को, कि 100% सेंसिटिविटी एंड 100% फॉल्स पॉजिटिव रेट, मीन्स ऑल टेस्ट रिजल्ट्स आर पॉजिटिव। तो ये जो होगा वो इस तरीके से ये प्लॉट किया जाएगा। डायगोनल लाइन यानी अगर वो ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे तो उसमें बीच में जो लाइन होगी बिल्कुल सेंटर में क्रॉस लाइन जो होगी, डायगोनल लाइन इज ROC कर्व और चांस डायगोनल, उसको हम ROC कर्व या चांस डायगोनल कहेंगे। तो ये किस तरह से होगा? अब ये ग्राफ किस तरह से प्लॉट होगा, किस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन होगी, किस तरह का ये नज़र आएगा हमें सिचुएशन में, तो उसको हम एक नज़र देख लेते हैं। वो है हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में। Now ROC curve example. Here any ROC curve that lies above the chance or diagonal has some diagnostic ability. ये है हमारे पास जो बीच में जो ये लाइन है, ये रेफरेंस लाइन, ये है वो डायगोनल लाइन जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये जो होगी वो मिड में
होगी इस कर्व के। तो ये 1 माइनस स्पेसिफिसिटी और ये सेंसिटिविटी, जैसा हमने बात की थी कि जो है वो वर्टिकल पर सेंसिटिविटी लेंगे हम, और 1 माइनस स्पेसिफिसिटी हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर होगी। तो हमने डेटा लिया, जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट था उसको प्लॉट किया। तो अब जब हमने इसको प्लॉट किया तो ये जो बीच में जो लाइन है ये जो है वो डायगोनल लाइन है, एंड एरिया अंडर द कर्व ऑफ चांस डायगोनल इज 0.5। यानी अगर ये पूरा का पूरा 100% है तो लाजिम बात है कि ये जब इसको हाफ में डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो हम इसको कहेंगे कि ये 50% है। ठीक है ना, तो ये 0.5 यानी 50% है। AUC फॉर परफेक्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज 1। अच्छा, अब ये है AUC डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट के। ठीक है, ये डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट के एरिया अंडर द कर्व है। एक ये वाला है ग्रीन वाला, एक ये ब्लू वाला है, और एक ये इस कलर में, ये लाइट ग्रीन, ये डार्क ग्रीन और ये ब्लू कलर में। तो ये 3 डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट किए गए हैं, और इसमें ये कर्व जो है ये 1 से ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, ये उसके बाद है और ये कम है। गो के तीनों जो है वो डायगोनल लाइन से यहाँ पर है, अबव द डायगोनल लाइन है, बिलो द डायगोनल लाइन फेल, अबव द डायगोनल लाइन है तीनों। तो एक्सेप्टेबल तो तीनों ही है, तीनों ही एक्सेप्टेबल हैं, बट इसमें जो सबसे अच्छा टेस्ट है वो ये वाला है जो लाइट ग्रीन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि ये 1 के उतना ही, यानी क्योंकि इसकी जो है वो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी सबसे बेस्ट है, और इसके बाद इसकी है, और इसके बाद फिर इसकी है। तो उस वजह से हम इसको ये कहेंगे कि ये सबसे बेस्ट है, उसके बाद ये वाला टेस्ट है, ये सबसे बेस्ट। तो हमें अगर कोई डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज़ करना है, इन तीनों टेस्ट में सबसे बेस्ट टेस्ट ये कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये जो है वो ROC कर्व में सबसे बेस्ट रिजल्ट बता रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट्स एंड डायग्नोस्टिक्स, और हमने जो जितने पैरामीटर्स थे वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छा जनाब, इसके बाद हम अब इस लेक्चर को एंड करने से पहले ज़रा एक बार तमाम पोर्शंस का जो हम डिस्कस कर चुके हैं रिव्यू कर लेते हैं। नाउ व्हाट वी वर डिस्कसिंग मेजरमेंट ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। उसमें हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया था स्टैटिस्टिक्स की बात की थी कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, देन द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उन पर हमने बात की थी। फिर हमने ये बात की थी टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कौन कौन से हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो सकती है एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमने बात की थी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो हम करते हैं। फिर हमने बात की थी कि हमारे पास रिसर्च में डेटा किस तरह का कलेक्ट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट व्हेन दे डू रिसर्च दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट द डेटा विच दे आर कलेक्टिंग फ्रॉम देयर रिसर्च इज हैविंग विच टाइप, उसकी टाइप क्या है, क्योंकि उसकी टाइप की बेस पर ये डिपेंड करेगा कि हमने उस पर स्टैटिस्टिकल टेस्ट कौन सा लगाना है। तो बुनियादी तौर पर तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा, बट क्वालिटेटिव डेटा के बजाय क्वांटिटेटिव डेटा पे हम ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। और क्वांटिटेटिव डेटा के वेरिएबल जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल, या हम इसको डिस्क्रीट या कैटेगोरिकल डेटा भी कहते हैं और कंटिन्यूस डेटा भी कहते हैं। अच्छा, डिस्क्रीट पे अगर हम बात करें तो डिस्क्रीट वेरिएबल को अगर हम रिकॉल करें, या डिस्क्रीट डेटा हमारे पास 2 तरह का होता है, नॉमिनल डेटा लाइक यस और नो, सर्वाइव नॉट सर्वाइव, जिस तरह से हमने बात की थी, डन और नॉट डन। ऑर्डिनल डेटा में हमने बात किया था कि ऑर्डरली अरेंज होता है, जो स्केल होता है वो लाइक पेन स्केल 0 से लेके 7 तक, या 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 10 तक। 1 मीन्स पेन, नो पेन रिलीफ, 10 मीन्स कंप्लीट पेन रिलीफ आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशन। या जैसे वो होता है कि पुअर, फेयर, गुड, एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट, तो ये भी ऑर्डिनल डेटा या ऑर्डरली अरेंज होता है। तो ये डेटा जो होगा वो डिस्क्रीट डेटा कहलाएगा। कंटिन्यूस वेरिएबल की हम बात करें तो कंटिन्यूस वेरिएबल में हमारे पास इंटरवल डेटा है लाइक बॉडी टेम्परेचर, रेशो डेटा है एज, वेट, हाइट, परसेंटेज की फॉर्म में या रेशो की फॉर्म में, जिस तरह से लाइक BMI हम हाइट एंड वेट का कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल कहलाएगा। यहाँ पे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कुछ मेजरमेंट यानी कुछ आपको एग्जाम्पल दे दी गई हैं। नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा को बता दिया, ये डिस्क्रीट में यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फिर इंटरवल डेटा, रेशो डेटा है, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं, ये कंटिन्यूस डेटा की एग्जाम्पल्स हैं।
इनको यहाँ पे बताया गया है। फिर वेरिएबल्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये हमने डिस्कस किए थे। फिर क्या था, मेजरमेंट ऑफ और मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में हमने बात की थी मीन क्या होता है डेटा का, मीडियन क्या होता है और मॉड क्या होता है। उसके बाद हमने ये एक टेबल देखा था जिसमें हमने एक डेटा देखा, फिर उसके बाद उसकी मॉड की वैल्यू देखी, मीडियन की वैल्यू देखी थी और मीन की वैल्यू देखी थी, और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो हमारी रिसर्च थी इसमें जो मीन एज थी पेशेंट्स की वो 37.63 ईयर्स थी। फिर उसके बाद हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात की थी कि हमारा डेटा कितना स्प्रेड है, कितना फैला हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास जो टेक्निक है, एक रेंज है, दूसरा इंटर क्वार्टाइल रेंज है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन है, और हमने बात की थी स्क्यूनेस ऑफ डेटा की। रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो हमने उसी डेटा पे अप्लाई की थी ये सिचुएशन। फिर हमने इंटर क्वार्टाइल रेशो की बात की थी, इंटर क्वार्टाइल रेशो की बात की थी और हमने ये एग्जाम्पल ली थी कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं और इनके मार्क्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो 76 से 100 मार्क्स लेने वाले 20 स्टूडेंट, फिर 51 से 75 लेने वाले 35 स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने बात की थी। ये 25 टॉप 25% का क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 टॉप सेकेंड 25%, फिर ये इस तरह से थर्ड 25% और ये फोर्थ 25%। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इस पर हमने बात की थी कि ये वेरिएंस है हमारे पास और फिर इसी का जब रूट ले लिया गया तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन परसेंटेज की फॉर्म में हमें बताएगा कि हमारा डेटा कितना जो है वो में वेरिएशन कितनी ज़्यादा है और या स्प्रेड कितना हुआ है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन ऑफ द डेटा इनटू 100 करेंगे तो वो परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने स्क्यूनेस की बात की थी। स्क्यूनेस में हमने बात की थी कि नेगेटिवली स्क्यूड डेटा होगा जब मीन जो होगा वो स्मॉलर देन मीडियन एंड मॉड, और जब मीन मीडियन एंड मॉड एक ही जगह पर आएंगे तो दैट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, देयर इज़ नो स्क्यूनेस। और अगर मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन एंड मॉड देन दिस डेटा इज़ कॉल्ड पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा, और इनके कर्व इस तरह से आएंगे। ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। नेगेटिवली स्क्यूड का कर्व इस तरह का बना हुआ होगा, ठीक है, टेल इधर होगी और फिर ये एकदम शार्प पीक होगी, और इसमें जो होगा पॉजिटिवली स्क्यूड में जो होगा वो टेल इधर होगी और शार्प जो पीक होगी वो यहाँ पर होगी। उसके बाद फिर हमने बात की थी कि डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना चाहिए। हम डेटा को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं टेबल की फॉर्म में, प्लॉट्स की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, तो वो जितना बेहतर अंदाज में प्लॉट होगा और ऑर्गेनाइज होगा वो उतने ही ईजी होगा फॉर रीडर टू अंडरस्टैंड। जैसे ये एक है पुअरली ऑर्गेनाइज फ्रीक्वेंसी टेबल और ये है वेल ऑर्गेनाइज फ्रीक्वेंसी टेबल जिस पर हमने बात की थी। फिर हमने ये बात की थी कि बॉक्स प्लॉट या विस्कर प्लॉट होते हैं, उसके ज़रिए भी हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हम मीन, बाउंड्रीज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, इनको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये हमने एग्जांपल देखी थी यहाँ पर ग्राफ के ज़रिए बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट की। उसके बाद हमने बात की थी बार चार्ट्स की। हमने बताया था कि कैटेगोरिकल डेटा यानी जो डिस्क्रीट डेटा है वो आमतौर पर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कहलाते हैं बार चार्ट्स। तो यहाँ पे हमने ये एग्जांपल्स देखी थी और हमने इसको डिस्कस किया था। हिस्टोग्राम में हमने बताया था कि ये कंटिन्यूस डेटा होता है और कंटिन्यूस डेटा इन डिस्क्रीट कैटेगरी वाज़ेह तौर पर अलग अलग नज़र आ रहा है, यानी डिस्क्रीट नज़र आ रहा है। तो ये जो है वो हिस्टोग्राम है। आमतौर पर ये कंटिन्यूस डेटा के लिए इस तरह की रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली की जाती है। पाई चार्ट की भी हमने बात की थी कि ये भी पाई चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और अगर ये वेल कंस्ट्रक्टेड हो, इसकी कंस्ट्रक्शन अच्छी हो, तो ये सिंपल टू रीड होते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। जैसा कि हमने ये वर्ल्ड ऑफ ड्रग्स के हवाले से यानी ग्लोबल स्पेंडिंग ऑफ मेडिसिन के हवाले से बात की थी कि ये इनके रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। फिर हमने प्रपोर्शन एंड रेट्स पर बात की थी, कैरेक्टरिस्टिक मेजर ऑन नॉमिनल स्केल, प्रपोर्शंस, ये रेट्स क्या होते हैं, मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट क्या होते हैं, मॉर्टेलिटी रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे,
वो हमने बात की थी, और जिसको हमने कहा था कि इंसिडेंसेस या प्रेवलेंसेस के फर्दर मालूम करते हैं। इंसिडेंस क्या होती हैं, डिजीज़ इंसिडेंसेस, इस पर हमने बात की थी। मैथमेटिकली हम इंसिडेंस प्रपोर्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ हमने फार्मूला डिस्कस किया था। फिर हमने प्रेवलेंस की बात की थी, और हमने ये बताया था कि प्रेवलेंस जो है वो उसकी डेफिनेशन के बाद दो तरह की होती हैं, पॉइंट प्रेवलेंस या पीरियड प्रेवलेंस। पॉइंट प्रेवलेंस पे हमने बात की थी कि किसी एक फिक्स टाइम पर जो न्यू केसेस हों उसको पॉइंट प्रेवलेंस कहते हैं। फिर हमने यहाँ एग्जाम्पल भी डिस्कस की थी। फिर हमने पीरियड प्रेवलेंस की बात की थी कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है और फिर इसका फार्मूला क्या है, और हमने ये भी बताया था कि पीरियड प्रेवलेंस को हम सिंपल प्रेवलेंस ऑफ डिजीज़ भी कह सकते हैं। फिर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट पर आ गए थे। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, और इसके परफॉर्मेंस मेजर क्या होते हैं, वो हमने डिस्कस किए। सेंसिटिविटी क्या होती है, स्पेसिफिसिटी क्या होती है, और प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या होती है, ये हमने इसमें डिस्कस किए थे। फिर हमने सेंसिटिविटी की डेफिनेशन की थी, उसके बाद हमने स्पेसिफिसिटी की डेफिनेशन की थी, फिर हम प्रिडिक्टिव वैल्यू पर आ गए थे। फिर हमने पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू की डेफिनेशन की एंड नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू की डेफिनेशन की। फिर हम आ गए समरी ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्मेंस मेजर कैसे करेंगे, कि हम एक टेस्ट को एक्सपेरिमेंटल बेस पे कंडक्ट करेंगे और उससे जो डेटा कलेक्ट होगा उसको यहाँ पे जो है वो इस पे प्लॉट करेंगे, और यहाँ पे जो है वो रिजल्ट को जो है वो लिख देंगे, और उसके बाद फिर इनका जो समेशन वगैरह जो यहाँ पे जो जिस तरह से करनी है वो हम करेंगे। इसके बाद हमने डेफिनेशंस पे बात की थी कि जो है ये जो टेबल है इसमें W क्या है, X क्या है, Z क्या है, Y क्या है। फिर प्रेवलेंस ऑफ डिजीज़ इसी डायग्नोस्टिक टेस्ट की बेस पे हम कैसे कर सकते हैं, उसका क्या फार्मूला होगा, ये हमने बात की थी। एक्यूरेसी टेस्ट की मालूम करनी है तो उसका क्या फार्मूला होगा, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। फॉल्स पॉजिटिव रेट मालूम करना हो तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पर जो है वो डिस्कस किया। फॉल्स नेगेटिव रेट क्या होता है उसको हमने डिस्कस किया, उसका फार्मूला डिस्कस किया। उसके बाद सेंसिटिविटी यानी ट्रू पॉजिटिव रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो उसका फार्मूला यहाँ पे मौजूद है। स्पेसिफिसिटी यानी ट्रू नेगेटिव रेट अगर हमें मालूम करना हो तो उसका फार्मूला हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कैसे हम करेंगे। फिर हम पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू पे आ गए और उसका फार्मूला हमने डिस्कस किया कि पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर हम आ गए थे नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू पे, और हमने नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू पे बात की थी और उसका फार्मूला जो है वहाँ यहाँ पे डिस्कस किया, और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमने फाइनलाइज किया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आ गए थे कि जो है ये भी जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसकी यूटिलिटी कैसे मालूम की जाएगी। तो इसकी यूटिलिटी मालूम करने के लिए ROC कर्व की हेल्प ली जाती है। ROC कर्व जो है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उस पर हमने बात की थी। उसको कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, कैसे इसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग ली जाती है, उस पर हमने बात की थी। इसके रिजल्ट्स कैसे चेक किए जाते हैं इसकी हमने बात की थी। और SPSS में ये ऑप्शन मौजूद है ROC कर्व का, वहाँ पर हम SPSS जो स्टैटिस्टिक्स का सॉफ्टवेयर है वहाँ से हम खुद भी ROC कर्व निकाल सकते हैं। बस हमारे पास ये डेटा वैल्यू होनी चाहिए जो हमने सेंसिटिविटी और 1 - स्पेसिफिसिटी इन दोनों का डेटा हमारे पास मौजूद होना चाहिए, तो हम इनको कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड है जिसके ज़रिए जो है हम जो है वो ये किसी भी डायग्नोस्टिक टेस्ट की स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी और प्रिडिक्टिव वैल्यू मालूम कर सकते हैं, और फिर पॉपुलेशन में उसकी यूटिलिटी किस हद तक है, क्या उसको यूज़ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको मालूम करने के जो ROC कर्व है वो भी हम डेटा में को अप्लाई कर सकते हैं SPSS में, और उससे ROC कर्व निकाल सकते हैं, और ROC कर्व की बेस पर ये डिसाइड हो जाएगा कि वो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो उसकी यूटिलिटी कितनी है। नाउ बिफोर कंक्लूडिंग दीज स्लाइड्स और बिफोर कंक्लूडिंग द लेक्चर ऑफ टुडे, जो हमने ये 3 लेक्चर डिस्कस किए हैं जिसमें रिसर्च डेटा और उसके एनालिसिस के हवाले से बात की है, मैं अगेन यहाँ पर फिर ये बात एम्फेसाइज करता चलूँ कि बहुत सारे रिसर्चर जो होते हैं वो उनकी रिसर्च बहुत अच्छी होती है, दे आर रियली very good researcher, but the problem is that they do not know that what kind of statistical test they can apply to their research to determine the significance
between the variables. तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है, असल में ये प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि दे डू नॉट अंडरस्टैंड वेल कि उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया है अपनी रिसर्च के ज़रिए उस डेटा की टाइप क्या है, क्योंकि जो डेटा की टाइप है वो हमें ये गाइड करेगी कि हमें टेस्ट जो लगाना है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट, वो कौन सा लगाना है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें आपके पास जो टेस्ट हैं पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। तो पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो आम तौर पे कंटिन्यूस डेटा पे लगाए जाते हैं और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट डिस्क्रीट डेटा पे लगाए जाते हैं। जैसे पैरामेट्रिक टेस्ट की मैं आपको एग्जांपल दूं, टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, एनोवा है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, ये जो है पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाते हैं। जबकि इसके बरक्स जो डिस्क्रीट डेटा है इसमें भी हमारे पास एक लॉन्ग लिस्ट है, जिसमें हमारे पास जो है वो काई स्क्वायर टेस्ट है, फिशर एग्जैक्ट टेस्ट है, और इसके अलावा जो है हमारे पास मैकनेमर टेस्ट है, और हमारे पास जो है वो विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट है, और इसके अलावा हमारे पास क्रुस्कल वैलीज टेस्ट है। तो ये इनमें से कौन सा टेस्ट हमारी रिसर्च पे लगेगा ये हमें जब ही मालूम होगा जब हम अपनी डेटा के रिसर्च को सही मानों में समझ सकेंगे। वी वेल अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी हैव generated, collected from our research. If we are perfect in this area, and we know that what kind of data which we have from our research data, then we will apply the right or the correct test for the analysis of this data and for the determination between the variables, that whether these variables are significantly associated or not significantly associated, कोई उनके दरमियान जो है वो सिग्निफिकेंस है या नहीं है, या अगर उन दोनों वेरिएबल के दरमियान कहीं पे कोई डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो वो डिफरेंस जो है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। दैट इज़ वाई we should know, as a pharmacist we should know, or as a researcher we should know that that what kind of data we have. तो data understanding is essential. तो data understanding अगर सही होगी तो फिर हमारा जो pathway होगा वो भी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके साथ ही let me finish the topic and see you soon or discuss with you soon with another lecture or another topic. Thank you very much.